اس سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا نکاح شرعی تھا یا پھر غیر شرعی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ آج جدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سنائے گی، جبکہ جج شاہ رخ ارجمن نے بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری جانب نواز شریف کی توشاخانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر آج سماعت ہوگی۔ نواز شریف کی درخواست بریت پر سماعت منگل کو مقرر تھی، تعطیل کے باعث نواز شریف کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ نواز شریف کے وکیل درخواست بریت پر آج دلائل دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ نواز شریف کی توشاخانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر آج سماعت ہوگی۔ نواز شریف کی درخواست بریت پر سماعت منگل کو مقرر تھی، جبکہ تعطیل کے باعث نواز شریف کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ مالی سال 2022-23 کے گوشوارے جمع نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کے نوٹس پر سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 98 ارکان اسمبلی کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے 59 ارکان قومی اسمبلی کو نوٹس بھجوایا تھا۔ سندھ اسمبلی کے 26، بلوچستان اسمبلی کے 13 ممبران کو نوٹس بھجوایا تھا۔ خرم دستگیر، محسن شاہ نواز رانجھا، راجہ ریاض، رانا ثناء اللہ کو نوٹس جاری کیا تھا۔ مریم اورنگزیب، طارق بشیر چیمہ، جاوید لطیف، علی موسیٰ گیلانی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ 5 رکنی الیکشن کمیشن آج سماعت کرے گا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، نواز شریف کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے آج منہ کالے ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے زمانے میں کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی، آج مشورے ہو رہے ہیں کسی طرح بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے اپنے حواریوں سے مل کر پہلے دوپٹے پہنائے، پھر جھرلو پھروایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ بانی پی ٹی آئی آج شیخ مجیب کی مثالیں دے رہے ہیں، عوام تمہاری سازشوں کو اپنے پیروں سے کچل دیں گے۔ چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے چوری نہیں کیے، وہ عمران نیازی نے چوری کیے۔ آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں۔ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا۔ نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آج ان کے منہ کالے ہو گئے، نواز شریف سرخرو ہو گیا۔ عمران نیازی اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دوپٹے پہنوائے، بعد میں الیکشن میں جھرلو کروایا۔ عمران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو، آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ 25 کروڑ عوام تمہاری سازشوں کو اپنے پاؤں سے روز دیں گے، کچل دیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بتائے کون تھا ان کا امپائر؟ کیا ظہیر الاسلام کی تیسری قوت وہ نہیں تھے؟ بانی پی ٹی آئی کہہ دے وہ تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف کا چیلنج، لندن میں پلان بنایا گیا اور پھر دھرنے شروع ہو گئے۔ پارٹی صدارت سنبھالتے ہی بڑے میاں صاحب خوب گرجے کہا، کارکنوں نے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 4-5 لوگوں نے عوام کے مینڈیٹ کو تباہ کیا۔ کو خوشی منانے نہ دیں۔ نواز شریف 7 سال بعد نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب، جنرل کونسل اجلاس میں خوب گرجے برسے، کہا کارکنوں نے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ بلائیں انہیں جنہوں نے مجھے تاحیات نااہل کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تمہارے بیٹے سے تو تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ ثاقب نثار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا کہ ثاقب نثار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ جو جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بھائی بیٹے سے نہیں لی نا، میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے۔ صدر نون لیگ کے مطابق ظہیر الاسلام نے تیسری قوت لانے کا کہا، لندن میں پلان بنایا گیا اور پھر دھرنے شروع ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ دے وہ تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ محسوس چلے جاتے ہیں
लंदन और वहां पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे? बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की कुर्बानियों का भी खसूसी जिक्र किया। बोले शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के बदले भाई से बेवफाई नहीं की। मरियम नवाज और हमदा शहबाज ने जेलें काटी। राना सनाउल्लाह, साद रफीक ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। हनीफ अब्बासी, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ी मुसीबतें झेली। नवाज शरीफ पार्टी छोड़ने वाले शाहिद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल को भी ना भूले। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने, लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वक्त उज़्मा के ऊपर जो अपने भाई से बेवफाई के सिले में मिले। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं, बहुत कड़े वक्त में उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा। हमदा शहबाज की भी बात करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ जेल काटी। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब, बशीर मेमन भी बैठे हुए हैं। सब लोग वो हैं जिसपे हमें आज बहुत फख्र है। नवाज शरीफ ने कहा हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इसे बिल क्लिंटन ने $5 अरब की पेशकश की कि धमाके ना करो, मगर हम बिके नहीं और उस वक्त के $5 अरब ठुकरा दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं मैं ऐसी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहूँगा, जो सच है वो सब जानते हैं। किसी के कहने से क्या होता है, हर बंदे को आज़ादी इजहार हासिल है। नवाज शरीफ भी अपने ख्यालात के इजहार में आज़ाद है। नवाज शरीफ ने जो कहा मैं उसका जवाब या उस पर तबसरा नहीं करूँगा। दूसरी जानिब इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए उसे तोहमत करार दे दिया। कहते हैं लंदन में ज़हीरुल इस्लाम समेत किसी भी जनरल से कोई मुलाकात नहीं हुई। धरने के बाद काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में रहा। नवाज शरीफ पार्टी सदर का ओहदा संभालते ही मुतहरिक। नवाज शरीफ की हदायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे जाती उमरा रायविंड में होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और साबिक गवर्नर सिंध की दुबई में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही, जबकि शेर अफजल मरवत और डॉक्टर इशरतुल आबाद का सियासी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। डॉक्टर इशरतुल आबाद का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। मुफाहमती इक़दामात से विफाक और सूबे की तरक्की में मदद मिलेगी। इंतज़ामी और गवर्नेंस के मामलात को सियासी इख्तलाफात से अलग रखना चाहिए, जबकि बामानी डायलॉग से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। अलकादे यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। छापामार टीम ने बहरिया टाउन के दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस और नैब की टीम ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के फेज़ 2 ऑफिस में छापा मारा। अमले से पूछगछ की। नैब छापों में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लो, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन के लिए बुरी खबर। IMF ने नए बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट ख़त्म करने की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मशकी किताबों, पेंसिल और पेनों पर भी टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी है। FBR हुकाम आज वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। आगे बढ़े और जुर्म से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालें। आपको बताएं कि लाहौर में अगवा की वारदातें मामूल बन गई हैं। थाना शाहदरा की हदूद में 1 करोड़ तावान के लिए शहरी अगवा कर लिया गया। रवा बरस 4.5 माह के दौरान खवातीन, बच्चों और बच्चियों के अगवा के 1070 वारदातें रिपोर्ट। कैंट डिवीजन 268 वारदातों के साथ पहले नंबर पर रहा। सदर डिवीजन में 196, जबकि मॉडल टाउन डिवीजन में 187 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। वजीर जानते हैं नुमाइंदा नियो शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में अगवाकारों के जो हैं ग्रोह मुतहर्रिक हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में जो है अगवा की वारदातें बढ़ना जो है मामूल बन गया है।
बात की जाए रवां साल के 4.5 माह के दौरान सूबाई दारुलकूमत में बच्चे, ख़वातीन, बच्चियों और शादीशुदा ख़वातीन के 1070 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर की 6 डिवीज़न में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कैंट डिवीज़न जो है ख़वातीन, बच्चे, बच्चियों और शादीशुदा ख़वातीन के अगवा की वारदातों में जो है वो सरफ़हरिस्त है। यहाँ पर 268 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस अदाद शुमार के मुताबिक जो सदर डिवीज़न है वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर ये अगवा की वारदातें 196 रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए अगवा की वारदातों की जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बच्चियाँ हैं, माल्टाउन डिवीज़न 187 वाक़यात के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर है। इसी तरह जो है सिटी डिवीज़न 174 वारदातों के साथ चौथे नंबर पर रही है। अगर बात की जाए इकबाल टाउन डिवीज़न, यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और बच्चियों की जो वारदातें हैं अगवा की, उसकी तादाद जो है 161 रही है। जो अगवा के मुलज़िमान हैं वो बाजियाब नहीं हो पा रहे। शहरियों ने अपील की है IG पंजाब, CCP लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल लाहौर से कि जो ये इनके मुलज़िमान हैं, जो पुलिस की टीमें तश्कील दी गई हैं इनकी बाजियाबी के लिए, उनको मुतहरिक किया जाए ताकि जो इनके मुलज़िमान हैं वो जल्द अज जल्द बाजियाब हो सके। जी, बानी PTI का निकाह शरई था या गैर शरई? इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आज जिद्दत में निकाह केस का फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ की हदायत पर वज़ीर आज़म के बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास तलब। इजलास आज सुबह 11 बजे जाती उम्रा रायविंड में होगा। और IMF के नए बजट में किताबों को उपयोग पेन और पेंसिल पर टैक्स छूट खत्म करने का हुक्म। FPR हुकाम आज वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। न्यू मॉर्निंग में कुछ बात मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम आज शदीद गर्म रहेगा। दोपहर में बाज़ मुकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। अगले 2 रोज़ के दौरान भलाई सिंध और जनूबी पंजाब के अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, भलाई खैबर पख्तूनख्वा और पोटोहार खित्ते में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी। दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान, सिब्बी, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, खानपुर, भक्कर और खैरपुर में पारा 50 डिग्री रहा। सूरज का पारा फिर से हाई। बाहों के शहर का मौसम गर्म। मौसमियाती तब्दीलियों का बायस मजीद दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ एहतशाम अली से। जी एहतशाम, बताइए। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के मौसम की बात करें तो मौसम आज भी खासा गर्म है। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जो है आज भी जो है शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि जो है सूरज आज भी आग बरसा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें दर्जा हरारत की तो 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करते चलें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 236 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर विराजमान है। मौसमियात ने आइंदा आने वाले 24 घंटों में इसी तरीके से मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशनगोई की है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने भी इस जो है अपनी आगाही का जो है बताया है। गर्म हवा और जो है लू से बचने के लिए जो है कैप और छतरी के इस्तेमाल का किया गया है, जबकि जो है बूढ़ों और बच्चों को जो है इजाफी गर्मी में निकलने से जो है गुरेज करने का कहा गया है। जी शुक्रिया एहतशाम। दूसरी जानिब कराची में आज से हीट वेव का इम्कान। शहर का पारा भी सुबह सवेरे ही हाई। दर्जा हरारत 30 डिग्री तक पहुँच गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइए। देखिए, हालिया गर्मी का सिलसिला जो है वो शहर में जारी है। आज से अगले 2 रोज़ के लिए महकमा मौसमियात ने शहर में हीट व्यू का जो इम्कान ज़ाहिर किया था उसका
जो सिलसिला है वो सुबह से ही हमें देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि महसूस हो रहा है 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और आज भी ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा जा सकता है। जबकि इसके अलावा शहर में मगरबी हवाएँ जो हैं, समुद्री हवाएँ बहाल हैं। इस वक्त हवाओं की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिसमें दिन में इजाफा होगा और दिन में हवाएँ जो हैं 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी। अगले 2 रोज़ के लिए हीट व्यू का इम्कान जाहिर किया गया, जिसमें शहरियों को ख़ास हिदायत जारी की गई कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और हल्के ठंडे कपड़ों का इस्तेमाल किया है। जबकि हफ्ते के रोज़ से जो है मौसम में तब्दीली की बताया गया कि हफ्ते के बाद जो है मौसम में तब्दीली होगी, दर्जा हरारत में जो है वो कमी आ सकती है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो अगले 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। जी शुक्रिया शहूद। रुख करे फैसलाबाद कहाँ, जहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस्ट्रो, डायरिया और हीट स्ट्रोक के मरीज़ों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने ज़िला भर के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू इस वक्त MS नुसरत फ़तेह अली खान तहसील हेडक्वार्टर डॉक्टर अताउल मुनिम के साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शौकत, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी शदीद गर्मी की जो लहर है वो बरकरार है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से फैसलाबाद में भी जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी जो हैं वो हीट स्ट्रोक, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला होकर हस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लेकिन तमाम सरकारी जो हस्पताल हैं इनमें भी जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। हस्पतालों में एमरजेंसी हीट स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिए गए हैं, हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं, ताकि जो भी जो है मरीज़ आए गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से इसमें मुब्तला होकर आए तो उसको फौरी तौर पर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराम की जाएँ। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक महकमा सेहत के जो आदादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद में अब तक जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो गैस्ट्रो, डायरिया और दीगर जो गर्मी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं उसमें मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि जो शदीद गर्मी की लहर है इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि इस जो गर्मी की लहर है इससे महफूज रहा जा सके। जी शौकत, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, फैसलाबाद में सूरज ने दर्जा हरारत बढ़ाया तो चिकों की मांग में इजाफा हो गया। माहिर कारीगरों लकी मरवत से मंगवाए गए तिनकों से चिके बनाते हैं जो हाथों हाथ शहरी खरीद कर ले जाते हैं। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट। फैसलाबाद में गर्मी की आमद के साथ ही चिकों की डिमांड भी बढ़ गई। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप और हमारी कदीम सकाफत की अक्कासी करती चिकों की रवायत आज भी जिंदा है। चिक्के लेने आए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से खिड़कियों वगैरह के ऊपर लगाने से जरा घर में रोशनी भी कम आती है और ठंडक रहती है। शहरी अपने घरों दरवाजों पर तिनकों से बनी चिकों को लगाते हैं जो खूबसूरती में इजाफे के साथ गर्मी और धूप की शिद्दत से भी बचाती हैं। चिक्कां दी लकड़े से लकी मरवत मंगाई जाती है, इत्थे लिया के तैयार करते हैं, तैयार करके चिक्कां बनाई दियां घरां दी खूबसूरती वास्ते, धुप वास्ते, छां वास्ते। लकी मरवत से आए तिनकों को जोड़कर माहिर कारीगर चिके, मूड़े और दीगर घरेलू आराइश का सामान बनाते हैं। कहते हैं गर्मी की शिद्दत से उनका कारोबार वाबस्ता है। 1500 रुपए में एक चिक शहरी बआसानी खरीद कर ले जाते हैं। खिड़कियों और दरवाजों पर लगी चिके जहां गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं, वहीं हमारी सकाफत की अमीन और घरों की खूबसूरती को भी बढ़ाती हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ जवेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। कोयटा में गर्मी बढ़ते ही बर्फ़ की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये का इजाफा हो गया। 20 रुपये फ़ी किलो में बिकने वाली बर्फ़ अब 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद हनीफ खान बाज़ाई से। जी हनीफ बाज़ाई, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ज़रा कोयटा में भी गर्मी का शदीद लेयर जो है वो बरकरार है। दूसरे जानिब केस्को के जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस शहरी जो है वो दुकानों से बर्फ़ खरीदने पर मजबूर हो गए। ख़रीदारी में इजाफा होते ही दुकानदारों ने जो बर्फ़ की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 20 रुपये से बढ़ा करके बर्फ़ जो है 30 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस गरीब शहरी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग के बायस घरों में पड़े फ्रिज जो है वो बंद पड़े, जिसके बायस शहरी जो है वो बर्फ खरीदने पर मजबूर है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बर्फ की कीमतों में भी कमी की जाए। जी
शुक्रिया हनीफ। सिंध के सहराए थर में गर्मी के दर्जा हरारत को कम करने के लिए इस्लाम कोट में 70 एकड़ रकबे पर ग्रीन पार्क बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। इसमें जानवर और परिंदे मुकामी लोगों के लिए तफरीह का जरिया है। इस बारे में चलते हैं नासिर शेख के पास। जी नासिर। जी, सहराए थर जो कि तपती सहरा है, जिसमें तपती रेत होती है और शदीद गर्मी होती है। मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र और थर को जो है वो ठंडा करने के लिए यहाँ पर इस्लाम कोट ब्लॉक 2 के अंदर जो है एक पार्क बनाया गया है जिसका नाम ग्रीन पार्क है और ये 70 एकड़ पर मुकीद ये पार्क है। इसमें खूबसूरत झूले लगाए गए हैं। इसके साथ यहाँ हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ मुख्तलिफ परिंदे और ख़ूबसूरत जानवर ला कर रखे गए हैं ताकि यहाँ के मुकामी लोगों को इंजॉय दिया जाए, यहाँ के मुकामी लोगों को तफरीह के मौके फराहम किए जाए। हमारे साथ मौजूद यहाँ के इंचार्ज हैं। जी बताइएगा, इस पार्क के बनाने का मकसद क्या है? सर, इस पार्क के बनाने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको यहाँ पे घूमने फिरने के लिए इतनी ज़्यादा ये जगह अवेलेबल नहीं है थर के अंदर, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर एक पार्क बनाया है जिसका नाम अंसारी ग्रीन पार्क है। और यहाँ पे हर किस्म के लोग, हर कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं। यहाँ तक कि बारिश के टाइम पर जब कराची से लोग आ रहे होते हैं तो वो भी यहाँ का रुख लाजमी करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ग्रीनरी है, तो हमने यहाँ पर भी तकरीबन ग्रीन पार्क के अंदर 2 लाख के करीब प्लांटेशन की हुई है, जिसके अंदर नीम है, लोकल दरख्त हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर पे बड़ा फ़र्क है। और बाकी तो आपको पता है जब बारिश होती है तो यहाँ पे एक जन्नत का मंजर यानी नज़र आ रहा होता है। इनका कहना है कि इसके यहाँ टेम्परेचर पर भी खासा असर पड़ा है और यहाँ के अवाम को तफरीह के भी मौके मिले हैं। ये जो है वो थर कोलफील्ड का इस्लाम कोट के अंदर बनाए जाने वाला एक खूबसूरत। नाज़रीन, खबर दे पाक बहरिया ने समुंदर में मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS असलत ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान शुमाली बहरा अरब में बड़ी मिकदार में मुनशियात जब्त की हैं। जब्त की जाने वाली मुनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समुंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर समुंदर में मुनशियात स्मगलिंग, बहरी कज़ाकी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाकायदगी से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं।